Welcome back, 9th standard. Today we'll be learning about the concept of mole, Avogadro's number, valency, and chemical symbols and molecules. Chapter is measurement of matter, which is chapter 8. Chapter 8. So we'll start with the last topic because it's small. Reading out for the text from the textbook, quoting it. Chemical symbols of elements. Dalton used certain signs representing elements. For example, dot was used for hydrogen, C for copper. In olden days, this was used for hydrogen and this was used for copper because there was no significant symbol, कोई ऐसा परफेक्ट या कोई ऐसा यूनिवर्सल सिंबल नहीं था जिससे हम हाइड्रोजन या कॉपर को डिटेक्ट कर सकते या डिक्टेट कर सकते थे. Today we use these symbols determined by IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. IUPAC, very important thing. IUPAC is a kind of organization, or you can say a particular group of people who invented the symbols of our particular elements और किस तरीके से उन symbols को use कर सकते हैं compounds के वक्त, elements के वक्त, atoms और molecules के वक्त, cations and anions के वक्त, अलग अलग process में उस element को किस basis पे हम लिख सकते हैं, हम dictate कर सकते हैं, ये IUPAC बता सकता है. IUPAC आपको आगे जाके अगर आप साइंस लोगे या केमिस्ट्री की फील्ड में आगे बढ़ोगे तो IUPAC is a very important and interesting concept which will help you grow your intellectual mindset over chemistry. Next, the current method of choosing symbols is based on method invented by Berzelius. There is a scientist called Berzelius, Berzelius. अभी हम जो steps use कर रहे हैं, हम tricks use कर रहे हैं, वो Berzelius की देन है हमारे को. So we are using tricks or steps used by Berzelius to identify and to dictate the symbols of our particular elements. You know, Berzelius said or stated that अगर आप symbols का नाम लिख रहे हो, if you are writing the name of the symbols, you just have to write the first letter capital and the second letter will be in lower case. For example, अगर आप हाइड्रोजन लिख रहे हो तो आप हाइड्रोजन को सिर्फ H लिखते हो, बट जब आप क्लोरीन लिख रहे हो तो आप C कैपिटल लिखते हो और L उसका लोअर केस में रहता है. या फिर आप बेरिलियम लिखते हो तो बेरिलियम का B कैपिटल होता है और E छोटा होता है. दिस इज invented by Berzelius. Let me just read it out to you. According to this method, the symbol of element is either the first letter or the first and second letter or another specific letter in its name. या तो सिर्फ पहला लेटर होगा, जैसे H है, कार्बन के लिए C है, फिर आपका क्लोरीन है, फ्लोरीन के लिए F है. ये सब क्या है? ये है, ये सब सिंगल लेटर वाले हैं. ये और ये आपके दो लेटर्स वाले. ज़रूरी नहीं है कि जो सेकंड लेटर होगा वही होगा. क्लोरीन की स्पेलिंग है CHLORINE, बस उसके सिंबल में ये और C यूज होता है, CRL यूज होता है. सो नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे H ही आए, देयर कैन बी C and L. और बट अभी हम यूज़ कर रहे हैं तो L नहीं होता तो हम HORINE कोई भी एक यूज़ कर सकते थे. बेरिलियम के लिए भी स्पेलिंग बेरिलियम की ऐसी है, BERILLIUM. तो बेरिलियम का ये E और ये E डिक्टेट करता है उसका नाम. सो दिस इज द ट्रिक और दिस इज द मेथड यूज्ड बाय Berzelius और यही अभी यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो रहा है या कह सकते हैं हर जगह एक्सेप्ट हो रहा है, which by which we can easily dictate chemistry over any language. Next is your molecules of elements and compounds. जो अभी यहाँ पे molecules dictate किया हुआ है वो. Atoms of some elements such as helium, neon have independent existence. Atoms of some elements such as helium, neon have independent existence. Independent existence is nothing but कि वो ज़्यादा किसी से रिएक्ट नहीं करते, वो खुद ब खुद स्टेबल रहते हैं, उनको ज़्यादा किसी से रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही प्रोडक्ट बनाते हैं. It means that these elements are in a monoatomic molecular state. Monoatomic molecular state मतलब एक सिंगल एटम से भी वो स्टेबल रह सकता है, नॉट नेसेसरी कि उसको दो एटम लगे. जैसे आप देखते हो कि
जब आप लिखते हो हाइड्रोजन लिखते हो तो वो H लिखते हो, पर आपको एटॉमिक स्टेट लिखना है तो आप H2 लिखते हो। आप जब Cl लिखते हो तो Cl2 लिखते हो, और ऑक्सीजन लिखते हो तो O2 लिखते हो। दिस इज व्हाट डाई एटॉमिक स्टेट। डाई मीन्स टू, कि इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को एग्जिस्ट करने के लिए दो एटम्स की जरूरत पड़ती है, एक दूसरे के लिए दो एटम्स की जरूरत पड़ती है। वैसे ही सेम आपका, बट हीलियम हो, नियॉन हो, आर्गॉन हो, ये सब आपके नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस क्या होते हैं? जो रिएक्ट नहीं करते हैं, जो खुद ब खुद इनर्ट है या खुद ब खुद स्टेबल है। सो these elements can also live in monoatomic state. Sometimes two or more atoms of an element combine to form molecules of that element. Such elements are in polyatomic molecular state. यही आपका डायटोमिक बोल सकते हो या पॉलीएटॉमिक बोल सकते हो। Let me just spell it out for you. Polyatomic. पॉलीएटॉमिक स्टेट कि एक या एक से ज़्यादा पर्टिकुलर एटम्स एग्जिस्ट करते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टेबल रखने के लिए, तो वो होता है पॉलीएटॉमिक स्टेट। फॉर एग्जांपल द एलिमेंट्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर इन डायटोमिक स्टेट। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपके डायटोमिक स्टेट में भी होते हैं। When atoms of different elements combine with each other, the molecules of compound are formed. अब जब आपको बताया जाता है कि दो एटम्स एक साथ रिएक्ट करते हैं, समझो आपका ऑक्सीजन और कार्बन रिएक्ट करता है, तो ये क्या होता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि कार्बन डाइऑक्साइड माइट बी फॉर्म्ड इन लार्ज क्वांटिटी। उसका सिर्फ एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। केमिकल रिएक्शन में भी सिर्फ एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। बट इफ़ यू टेक मोर क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा, तो आपको दिख के आएगा कि उसका कंपाउंड बन रहा है इसका कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जब C कार्बन और O2 या फिर ऐसा हो कार्बन और O2 रिएक्ट करते हैं, तो हो सकता है 2CO बने, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बने, क्योंकि दोनों जगह स्टेबल है। ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ज़रूरी नहीं कि ऐसा रिएक्शन हो। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि व्हेन टू एटम्स, दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि पूरा कंपाउंड फॉर्म हो, उसका पर सिर्फ एक मॉलिक्यूल भी फॉर्म हो सकता है। When two atoms of different elements react with each other, the molecule of compound is formed. Not the whole compound, but the molecule of compound is formed. और जब when two elements react with each other, a whole compound is formed. Next आ रहे थे हम मोल के कॉन्सेप्ट पे। Wait a minute, there is also molecular mass. Molecular mass of a substance is sum of atomic masses of all atoms in a single molecule of this substance. Like atomic mass, molecular mass is also expressed in the unit Dalton. हमने एटॉमिक मास पिछले टाइम पढ़ा कि उसमें पॉजिटिव प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जितनी क्वांटिटी रहती है वो उसके साथ और कंपेयर करोगे तो आपको कितना एक टाइम पे एटॉमिक मास आता है, एक टाइम पे यूनिफाइड मास आता है, वो होता है एटॉमिक मास में, कि उसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, उसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, और ये दोनों मिलाएंगे तो कितना मास होगा वो। नाउ मॉलिक्यूलर मास इज सिमिलर। मॉलिक्यूलर मास इज कैन बी स्टेटेड एज molecular masses of a substance is sum of atomic masses of all atoms in a single molecule of that substance. चाहे वो एलिमेंट हो, सिर्फ एक छोटे एलिमेंट का मॉलिक्यूल हो, मतलब इन शॉर्ट इफ देयर इज ओनली हाइड्रोजन और इफ देयर इज वाटर, इसका मॉलिक्यूलर मास इसके अंदर जितना एटॉमिक मास होगा वो, या इसके अंदर हाँ सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ सिंगल मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन 2 है तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कुछ होगा, वो उसका आंसर होगा, समझो x होगा। फिर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन भी है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स प्लस मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम विल गिव यू सम आंसर दैट व्हिच इज व्हाई दिस इज मॉलिक्यूलर मास। ये आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आपको मॉलिक्यूल H2O का ही दिया हुआ है। H2O के लिए आपको दिया है कि H2O है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास कितना है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, बट हाइड्रोजन कितना है 2, तो 1 into 2 is how much 2, which 16 plus 2 will give us 18 units। मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है 18 यूनिट। सिमिलरली आप दूसरे एलिमेंट्स के लिए भी कंपेयर कर सकते हो या ऐड करके निकाल सकते हो। अब आता है आपका ओल्ड कॉन्सेप्ट, जस्ट अ रिविजन। Molecular mass is nothing but sum of all the atomic masses of the particular element or that substance। एटॉमिक मास क्या होता है? उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने हैं वो। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? उस एलिमेंट में या उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में जितने एलिमेंट्स हैं, जितने मॉलिक्यूल्स हैं, उनका एटॉमिक मास का सम।
वो सबके एटॉमिक मास को ऐड करोगे तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट या उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का आपको मॉलिक्यूलर मास आएगा। एटॉमिक मास एटम्स से रिलेटेड है, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस से रिलेटेड है। सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। थोड़ा मैं आपको इसका इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा तो मैं समझा देता हूँ। आप जब कोई भी रेसिपी कुक करते हो या आप जब कोई भी खाना बनाते हो, सो नॉट नेसेसरीली आप लेते हो कि इतना ही ग्राम मुझे नमक लेना है या इतना ही ग्राम चीनी लेना है या इतना ही ग्राम कोई और बेल पेपर या कुछ भी हो। सो आप क्या करते हो, उसमें लिखा था इतना टीस्पून लेना, 2 टीस्पून, 3 टीस्पून, 4 टीस्पून, एनी टाइम एनी वे। सो आप ये नहीं देखते हो कि टीस्पून में कितना जा रहा है, आप बस टीस्पून में जितना आ सकता है उतना लेते हो और उसमें रेसिपी के साथ में जो खाना बन रहा है उसमें डाल देते हो। मोल थोड़ा सा सिमिलर कॉन्सेप्ट ही है। मोल ऐसा समझो कि वो एक टीस्पून है। मोल एक टीस्पून है जिसमें आप जितने एलिमेंट्स उसमें बन सकते हैं वो डालते हो। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18 यूनिट्स। 18 यूनिट्स है मतलब क्या, एक मॉलिक्यूल जो होगा वाटर का, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा उसमें 18 यूनिट्स मॉलिक्यूलर मास है। तो वो 18 यूनिट्स को मैं एक मोल गिन सकता हूँ। एक मोल गिन सकता हूँ इन द सेंस कि जब मुझे एक वाटर मॉलिक्यूल लेना होगा तो मैं वो 18 यूनिट्स से लूँगा। मतलब क्या हो गया, ये मोल जो हो गया, एक मोल वाटर के लिए, और वाटर 1 मोल क्या हो गया, वो जितना 18 यूनिट्स या 18 यूनिट्स का जो वाटर था, 18 डाल्टन का जो वाटर का मॉलिक्यूल का मास है, दैट्स योर 1 मोल। सिमिलरली जब आप खाने में नमक डालते हो तो वो टीस्पून जो है उसमें जितना नमक आता है आप उतना ही डालते हो। आप ये नहीं सोचते हो कि आधा चम्मच अभी लेता हूँ, आधा चम्मच बाद में लेता हूँ। आप 2 चम्मच बोला है तो 2 चम्मच ले नमक निकालते हो और उसमें डालते हो। सिमिलरली जब अगर कोई बोलता है कि 2 मॉलिक्यूल वाटर का चाहिए तो वो 2 मॉलिक्यूल वाटर का चाहिए, मतलब क्या, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल 18 यूनिट्स का है तो यहाँ पे कितना लगेगा, 2 मोल, मतलब क्या 2 टीस्पून लगेगा। नमक की जगह वाटर है और टीस्पून की जगह मोल है। तो मैं जब 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहा हूँ, मतलब क्या 2 मोल ऑफ 18 यूनिट्स वाटर ऐड कर रहा हूँ, तो 18 यूनिट्स एक बार जाएगा, दूसरी बार 18 यूनिट्स जाएगा। दैट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। लेट मी रीड इट आउट टू यू। When elements and compounds take part in chemical reaction, it is their atoms and molecules that react with each other, and therefore it is necessary to know the number of atoms and molecules. अब जब आप chemical reaction करते हो, when you are performing a chemical reaction, obviously the elements in the particular compound or substance take part in chemical reaction. जब elements ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या, उसके अंदर का atoms भी participate कर रहा है reaction में. So it is necessary to know the value of reaction, or necessary to know the value of atoms and molecules involved in the reaction. However, while carrying out a chemical reaction, it is convenient to measure out quantities that can be handled instead of counting the numbers of atoms and molecules. The concept of mole is useful for this purpose. एक chemical reaction करते हो या एक chemical reaction carry out करते हो, उस process में आप सब चीज़ें आप सब quantities को count कर सकते हो, weigh कर सकते हो. But wouldn't it be easier if you just consider it, or if you just handle instead of counting the number of atoms and molecules? Concept of mole is useful for this purpose. A mole is a quantity of a substance whose mass is in grams, is equal in magnitude to molecular mass of that substance in daltons. Thus the molecular mass of oxygen is 32 units, and therefore 32 gram oxygen is 1 mole of water. Nothing but just this case, molecular mass of 1 mole of oxygen. The molecular mass of water is 18 units. जो मैंने अभी बताया molecular mass of water is 18 units, तो 1 मोल कितना होगा आपका, 18 यूनिट्स के बराबर होगा. सिमिलरली आपका O2 है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है. ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16. Now there are how much oxygen here, 2, so 16 into 2 gives us 32. मतलब 1 mole of oxygen has 32 units of mole. 2 ऑक्सीजन रहेगा तो 64 होगा, 3 ऑक्सीजन रहेगा तो अलग कुछ होगा, 96 होगा. So what I'm trying to say is कि it is not necessary कि आप atoms molecules count कर करके केमिकल रिएक्शन.
इट कैन बी अज्यूम्ड दैट हम मोल के हिसाब से उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में वो पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रेजेंट कर सके या वो पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सपोज कर सके. 1 mole of a compound is a mass of that substance in grams, equal in magnitude to its molecular mass. Let me just give the formula to you. 1 mole of a substance is equal to mass of substance upon molecular mass of substance, similar substance. So what I'm trying to say is कि जैसे आप टीस्पून गिनते हो, नॉट नेसेसरली उसमें लिखा हो कि आप सिर्फ 50 ग्राम सॉल्ट लो, 50 ग्राम बहुत ज़्यादा हो गया, समझ लो 20 ग्राम सॉल्ट लो. सो यू डोंट कीप ऑन काउंटिंग कि यार 20 ग्राम सॉल्ट हुआ कि नहीं, 20 ग्राम सॉल्ट हुआ कि नहीं, ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं. सो व्हाट हैपेंस इज दे गिव यू एन ईजियर ऑप्शन ऑफ टीस्पून कि आप 2 टीस्पून सॉल्ट लो और बस हो गया. वैसे ही इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप हर टाइम एटम्स और एटम्स के अंदर या एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स काउंट करते रहो कि इतना एटम पार्टिसिपेट करना चाहिए रिएक्शन में, इतना एटम नहीं करना चाहिए. सो उसी कॉन्सेप्ट को इजी करने के लिए मोल की थियोरी दी गई है कि एक मोल क्या होगा कि नॉर्मली एक मॉलिक्यूल का वैल्यू जितना होता है मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से उसको हम एक मोल गिन सकते हैं. नथिंग बट अब इजी कॉन्सेप्ट. अगर फिर भी नहीं समझ रहा है so ask us in the comment section or on the WhatsApp group. We will be happily solving your doubts. बस फ़र्क ये है कि आप एक एनालॉजी समझो आपकी डेली लाइफ से कि मोल की जगह टीस्पून है और बाकी इंग्रेडिएंट्स की जगह आपके एलिमेंट्स हैं. मोल क्या है, एक जनरलाइजेशन है कि जितना चाहिए उतना ही निकालना है उस मॉलिक्यूल से. जैसे यहाँ पे 18 यूनिट्स वाटर का है तो एक मोल में 18 यूनिट्स ही आएगा. सेम आपके ऑक्सीजन के लिए एक मोल में 32 यूनिट्स ही आएगा. That is one thing which is constant or you can say which is understandable. So इसको आप ध्यान से देखिए, बाद में हम एवोगैड्रोस नंबर पे आएंगे. The last concept you have is Avogadro, or popularly or widely known as Avogadro's number. Avogadro's number. Avogadro was an Italian scientist who was curious to find कि एक मोल में या एक मोल में how many atoms or how many molecules comprise in one mole. कि एक मोल में कितने molecules और atoms हैं. So Avogadro took his theory, revised it, reread it, और उसने कॉन्सेप्ट में एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाला जिसमें आंसर आया वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोस नंबर है 6.022 into 10 raised to 23. 6.022 into 10 raised to 23 is the correct answer, or you can say specific value for Avogadro's number कि मतलब एक मोल ऑफ सब्सटेंस स्टैंड्स फॉर 6.022 into 10 raised to 23 मॉलिक्यूल्स. आपका एक मोल का वैल्यू जितना होगा वो होगा 6.022 into 10 raised to 23. एक मोल में भले ही कितने भी उसके यूनिट हो, जैसे अभी आपका एक मोल 1 mole of water has 18 units, which implies what? Your 1 mole of water contains 18 into 6.022 into 10 raised to 23 units of molecules. Similarly, जैसे आप सिंपली एक एनालॉजी लगा लो कि एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं, एक सेंचुरी में 100 रन होते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स व्हाटएवर, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं. वैसे ही एक मोल में, एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल में 6.022 into 10 raised to 23 molecules होते हैं. Try to understand that कि what is mole? Mole is nothing but a generalized term used for chemical reactions so that you don't have to continuously weigh or count the atoms and molecules. What is Avogadro's number? Avogadro's number is nothing but a number which is constant for each mole of molecule. कि हर एक मोल में जितना
मॉलिक्यूल्स रहेगा उसका वैल्यू होगा 6.022 इंटू 10⁻23। आपका मोल भी कांस्टेंट रहता है, मोल में जितने मॉलिक्यूल्स है वो भी कांस्टेंट रहता है, और आपका एवोगैड्रोस नंबर के हिसाब से एक मोल में जितना मॉलिक्यूल होगा, एक मोल में जितना वैल्यू होगा वो भी कांस्टेंट ही रहता है। जैसे कि आपका 1 मोल में आपका 18 यूनिट्स वाटर ही जाएगा, पर वाटर का जब एवोगैड्रो नंबर निकालोगे तो इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो भी ऑफकोर्स कांस्टेंट ही मिलेगा। सो 1 मोल इज नथिंग बट योर मास ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज एवोगैड्रोस नंबर? एवोगैड्रोस नंबर इज नथिंग बट कि एक मोल ऑफ सब्सटेंस में, एक मोल ऑफ कोई भी सब्सटेंस हो, नॉट नेसेसरीली वाटर, एक मोल ऑफ कोई भी सब्सटेंस हो, उसमें कितना मॉलिक्यूल्स है, दैट इज योर एवोगैड्रोस नंबर, which is defined by this Na, and value is 6.022 into 10⁻23 molecules. So आज के लिए बस इतना ही. Try to understand the lecture. It was very complicated and the chapter is very easy, but if you try to just mug it up, सिर्फ रट्टा मारने जाओगे तो कुछ नहीं होगा. उसको एनालॉजी के थ्रू इजी करने की कोशिश करो. जैसे 1 मोल का टीस्पून के हिसाब से एनालॉजी था, एवोगैड्रोस नंबर का सेंचुरीज और रन्स के हिसाब से एनालॉजी था. तो कोशिश करो कि जितना कॉन्सेप्ट हार्ड होता है उसको आप रियल लाइफ से रिलेट करके ईजियर बनाने की कोशिश करो. टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ.